Hello students, I am Heta Desai. Today we are going to start with a very new subject of SYBCA semester 3, that is 305 Object Oriented Programming Language. Now आप लोगों ने सेमेस्टर 2 के अंदर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी सीखा हुआ है. Now let us start with a layered programming. Now machine language. What is machine language? Machine language is a only language that a computer can understand. That is, it is a combination of zeros and ones. That is, this machine language. Second is assembly language. What is assembly language? Assembly language is a low level programming language that is created for specific type of processor. Now next is procedure oriented language. Now procedure oriented language, COBOL, Fortran, C language that you have already learned in semester 2. C language that are commonly known procedure oriented language, that is also known as a POP. Now let us start with, we are dealing with in this semester, that is object oriented language. Before moving to object oriented programming language, we will discuss some basic idea regarding and drawbacks of procedure oriented programming language. We will discuss now POP, that is procedure oriented programming language, that is a conventional programming using high level language such as COBOL, Fortran and C. COBOL is commonly known as a procedure oriented language. Now basically procedure oriented language is focused on function. Now what is function? ये आप लोगों को पता ही है what is function. Function is a list of instruction for a computer to follow and organize this instruction in a one group, that is known as function. हम लोग यही करते हैं, function के अंदर list of instruction होता है और function call करने से ये list of instruction is going to be performed. Okay. Now यही approach follow करते हैं हम C के अंदर, that is your main program, that is your void main, and in void main number of functions can be called function 1, function 2, function 3. In this diagram is a typical structure of procedure oriented language, that is a function 1, function 2, function 3. अब ये भी possible है function 1 के अंदर function 4 call हो रहा है, function 2 है, function 2 के अंदर 3 function are going to be called, that is 4, 7 and 5. in function 3 के अंदर 5 कॉल हो रहा है. अगेन 4 फंक्शन अगर कॉल हुआ तो उसके अंदर फंक्शन 7 भी कॉल होगा, फंक्शन 6 भी कॉल होगा. अगर फंक्शन 5 कॉल हुआ है तो 5 के अंदर 7 भी कॉल होगा, 8 भी कॉल होगा. That is a structure of procedure oriented language. मतलब your whole program is divided into number of functions और उसके फंक्शन कॉलिंग से ही ये सब मैनेज होगा. Now in procedure oriented language we normally use flowchart to organize this action. है ना, हम लोग flowchart बनाते थे और वो flowchart से ही एक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये फंक्शन के बाद ये कॉल होगा, इसके बाद ये कॉल होगा, इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. That is all going through using a function or flowchart. Now main problem with POP is that data. Now you know that what is local data and what is global data. What is global data? Global data वो है जो each and every function can access, and local data वो है जो function के अंदर हम लोगों ने वो डेटा का डिक्लेरेशन किया है वो ही function से वो डेटा को एक्सेस कर सकता है. That is known as local data. Now let us start with some example. चलो, अगर ये हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम है, दैट इज इंटीजर डेटा, ये ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ हमारा डेटा है. आप लोगों को ये पता है कैसे ग्लोबल डेटा, ये ग्लोबल है क्योंकि अब ये हम लोगों ने वॉइड मेन के ऊपर डिक्लेयर किया है, मतलब दैट इज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ डेटा वेरिएबल. अब जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी फंक्शन हम लोग ये फाइल के अंदर बनाएंगे, जितने भी फंक्शन है वो ये डेटा को एक्सेस कर सकता है और वो मैंने डिक्लेयर 1 कर दिया है. देखो अब वॉइड मेन के अंदर सिंपली हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल किया है. दैट इज योर डेटा, मतलब यहाँ पे डेटा का वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, दैट इज 1. ये एकदम सिंपल प्रोग्राम है, दैट इज कंटेनिंग ओनली 2 फंक्शन, दैट इज फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2. अब इन अ लार्ज प्रोग्राम मल्टीपल फंक्शन कैन बी कॉल्ड. अब मेन प्रॉब्लम ये है कि लार्ज प्रोग्राम है तो मोस्ट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट डेटा इज यूज्ड बाय व्हिच फंक्शन. कौन सा डेटा कौन से फंक्शन कॉल करेगा या कौन सा फंक्शन कौन से डेटा को एक्सेस कर रहा है.
देखो ये फंक्शन सिर्फ ये फाइल के अंदर, ये सी फाइल के अंदर मैंने सिर्फ दो फंक्शन क्रिएट किया, जैसे फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। अब दोनों के अंदर ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ डेटा एक्सेस हो रहा है, प्लस 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 प्लस, मतलब 1 है तो यहाँ पे प्लस प्लस होके 2 प्रिंट होगा, और ये प्लस प्लस फंक्शन 2 के अंदर डेटा प्रिंट होगा। मतलब यू नो व्हाट इज ग्लोबली डेटा एंड व्हाट इज लोकल डेटा। अगर ये फंक्शन 1 के अंदर कोई मैं यहाँ पे कुछ भी एक डेटा 1 को डिक्लेयर कर रही हूँ, integer data 1 equal to 2, that is a local for function 1। मतलब ये data 1 function 2 या rest of the function ये फाइल के अंदर है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। that is your local and that is your global। तो global data अगर यूज कर रहा है तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि it is most difficult to identify what data is used by which function। agree? तो इसको ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज फंक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। क्या होता है, आपका पूरा प्रोग्राम है दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ partition that we are known as function, and function is what? Function is a set of instruction for computer to follow and organize into a group, that one group is known as function। most of the data are globally accessed और globally data share करता है function, that हम लोगों ने अभी ये program through देखा। now data move openly around system from function to function। ये हम लोगों ने ये program में क्या देखा, वन ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ डेटा है, दैट इज योर नेम इज डेटा। नाउ जितने भी फंक्शन बनाओगे ईच एंड एवरी फंक्शन कैन एक्सेस दिस डेटा, मतलब ओपनली अराउंड हो सकता है फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली fourth point, that is top down approach। now POP follow top down approach। what is the meaning of top down approach? that you know from top to bottom, that is known as top down approach। now क्या है पीओपी के अंदर, मतलब सी के अंदर आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट मेन प्रोग्राम लिख देते हो, उसके बाद लिस्ट ऑफ द फंक्शन है, मतलब मेन प्रोग्राम आप लोगों ने लिख दिया, उसके अंदर फंक्शन कॉलिंग होगा, और वो फंक्शन की बॉडी कहाँ होगी, आफ्टर मेन। मतलब टॉप डाउन आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मेन, एंड मेन से फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट होगी, और वो फंक्शन की बॉडी कहाँ पे होगी, मेन के बाद। मतलब दिस फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर एवरीवन? now move to the fourth portion, that is object oriented program। this is the procedure oriented language that we have already seen and you have already learned in semester 2। now in semester 3 main focus is object oriented programming language। now what is object oriented programming language? to remove procedure oriented language के जो भी drawbacks थे वो remove हो जाएंगे object oriented through। now C++। what is the meaning of C++? C++ is somehow related between C and C++। C के अंदर आप लोगों ने जो किया है वो हम लोग C++ के अंदर करेंगे, लेकिन we can say that C++ is an enhanced version of C or extension of C language। now चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेन सेकेंड पॉइंट, object oriented program allow decomposition of a problem or a program into a number of smaller element known as object। mainly ये है कि in object oriented language आपका जो पूरा प्रोग्राम होगा that is divided into number of parts or that is divided into number of parts elements, that is known as object। अब POPC के अंदर क्या था, that is divided into number of entity, that is known as function, and यहाँ पे क्या है object, और and then build data and function around that object। अब ये हम लोग डायग्राम थ्रू देखते हैं। ये डायग्राम में क्या है, देखो now ये एक ऑब्जेक्ट होगा, this one object that contain data and function, another object that contain data and object। now यहाँ पे ये डेटा ग्लोबली नहीं लोकली होगा। इसका मतलब क्या है, this object B cannot access this data directly। कोई भी ऑब्जेक्ट का डेटा सेकेंड ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस ओनली बाय फंक्शन। इसका मतलब ये डेटा जो है दैट डेटा इज
going to be accessed by this function and this function can be called using this object. इसका मतलब क्या है, each and every object having its data and function, और वो ही ऑब्जेक्ट थ्रू वो फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन के अंदर ये डेटा एक्सेस होगा. इसका मतलब क्या है, रिवर्स वर्जन में देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन कैन एक्सेस ओनली दिस डेटा. डायरेक्टली ये फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट भी ये डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ फंक्शन. देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है यूजिंग दिस फंक्शन. फंक्शन कैन कम्युनिकेट विद अनदर फंक्शन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. दिस कैन बी पॉसिबल. That is main object oriented programming, that is mainly security. Which type of security? अब आपका डेटा freely move नहीं होगा from one function to another function. ये पॉसिबल है कम्युनिकेशन और डेटा का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, लेकिन विद द यूज ऑफ दिस फंक्शन. आगे जैसे जैसे पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा, लेकिन बेसिकली ये है कि आपका जो पूरा प्रोग्राम होगा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ये पार्ट्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट. नाउ दिस ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स डेटा एंड फंक्शन. अब रिवर्स वर्जन में पहले देखेंगे ये डेटा है जो ये फंक्शन यूज करेगा एंड ये फंक्शन कैसे कॉल होगा यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट. और रिवर्स मैनर में दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सेस थ्रू, this function is accessed through this object and ये function किसको access करेगा, this data. Now characteristic of object oriented program are divided into smaller parts which is known as object, that we have already seen. Data is hidden. How hidden? This type. Each and every object having its data, मतलब ये object भी object A के data को directly access नहीं कर सकता है. मतलब in object B, object A का data तो hidden है, मतलब object B का डेटा का स्कोप क्या होगा, लोकल. मतलब ये डेटा सिर्फ ऑब्जेक्ट बी के अंदर विजिबल होगा और ये ऑब्जेक्ट बी के थ्रू ये फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शन. हम लोगों ने ये देख लिया बॉटम अप मैनर. कैसे बॉटम अप है, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे यू गेट टू नो. क्लियर? थैंक यू. दिस इज फॉर टुडे सेशन. नेक्स्ट विल बी इन नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू.